तो वर्ब पढ़ रहे थे, ओके। और उससे पहले हमने वर्ब्स पढ़े थे, राइट। जैसे हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसके अंदर कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। सेंटेंस में बी और हैव का यूज आता है, ये सब हमने पढ़ा था, राइट। सो नाउ it's time for kinds of verb, right? Suppose I have written we ate mangoes. Okay. Okay. And the second sentence I have written the girl laughed. Right? Two sentences I have written. Good morning, everyone. Good morning. Okay. So in the first sentence, the verb ate, which requires an object to complete the sense, it is called your transitive verb. राइट दो हमने पढ़े थे, ट्रांजिटिव एंड intransitive. टू टाइप्स के पढ़े थे हमने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट इज योर ट्रांजिटिव एंड अदर इज योर इन ट्रांजिटिव, ठीक है। ये दो टाइप्स के वर्ब्स मैंने आपको बताए थे, राइट। तो अब क्या हो रहा है, द फर्स्ट सेंटेंस जो हमने देखा था कि वी एट मैंगोज, मैंने उस दिन आपको लिख के भी बताया था, वी एट मैंगोज, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने एट को अंडरलाइन किया है। व्हाई दे हैव अंडरलाइंड इट? Okay. So in the first sentence, what is happening? The eight verb which is required an object to complete its sense. Okay. Your eight requires an object to complete its sense. That is mangoes. Okay. So mangoes here is an object of eight to complete the sentence. Okay. So this is your transitive verb. Okay. This will be your transitive. Right? Okay. And the second sentence, the verb laughed. Okay. That is, the sentence is the girl laughed. Okay. That will be your intransitive. Why? Why? Because in the second sentence, the word that is laugh. Okay. It is a verb. Okay. And it is not requiring, there is no need of an object because it makes a good and complete sense itself, right. It is making its sense completely, that is why, and that is why it is called an intransitive verb. तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है बेसिकली, अगर हम देखें तो दोनों का डिफरेंस आपको समझना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव वन, इन दैट यू नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू मेक अ सेंटेंस सम सेंस, right. And in intransitive you did not need any type of object to complete your sentence to make a sense, because the sentence is completed with the sense, right. That is, the girl loved. अब ऐसा थोड़ी है कि इसमें हम मेंशन करेंगे हाउ शी लव्ड, व्हेन शी लव्ड, नो नीड, इट इज बीइंग क्लियर, ओके शी लव्ड, right. But we ate, then we ate, it can be different things, right. You need to mention the thing, so they have mentioned here mangoes. So in this type it is the transitive, and in when we talk about the girl laugh, it is intransitive one, right. So both, basically this is the main difference between the both. Okay, clear to everyone? Clear this is? Now therefore it is clear that the transitive word require the object to make a complete sense. On the other hand, the intransitive verbs do not require an object to make the complete sense, right. अब मैं इसको एक और आपको ऐसे एक बार वापस बता देती हूँ, राइट, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखो, ये हो गया ट्रांजिटिव, राइट। तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांजिटिव में, वी आर यूजिंग है ऑब्जेक्ट, एंड इन इंट्रांजिटिव नो ऑब्जेक्ट. And why we are using object? For, okay, I will write
to make complete sense. Okay, and it here in transitive sense, you don't need any object, no need of object, because it is being, you can say, complete. It is complete, right? So we doesn't need any type of object to make the complete sense. It is completed, right? Okay, it is completed in self itself only. So we don't need the you can say the object after the verb. That you have to make clear. After the verb, you don't need any type of object to complete the sentence to make a sense, right? This is the one complete line which I have spoken, and you should be clear with this, right? तो काइंड ऑफ वर्ड्स वर्ब्स में हमारे पास दो तरह के हो गए, जिसमें ट्रांजिटिव में वी यूज ऑब्जेक्ट दैट इज टू मेक द कंप्लीट सेंस फॉर द सेंटेंस, and in intransitive we don't use any object, and because it is already completed there is no need to complete it. Okay, so I hope you have been clear with the things now. Okay, okay, everyone, everybody. Okay, so now see, next we will move to the examples are given. Some more examples are given. We'll do that example and then we will move to the exercise. And those who have not done the exercise given, which we have done for the last chapter, today I will send them on WhatsApp. Please do copy. Those who have not done or those who are late in the class, do copy from them. Okay, clear everyone? Okay, now it is given transitive verb and intransitive verb. In your books, if you will see the first one sentence, it is the boy flies his kite. That is a transitive verb, right? The boy flies his kite. Okay, what he is flying his kite, right? Transitive verb, the child sleeps. Okay, it is the complete it is the complete sentence. There is no need. Then the driver stopped the bus. Okay, what is stopping? Is stopping the bus. And the second, that is the transitive one, it is the bird flies. Okay, we can use most verbs either as transitive or as the intransitive verb. जो दो तरह की हम यूज करते हैं वो होती है आपकी, या तो ट्रांजिटिव होती है या वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑब्वियसली जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो हमने हमने क्या समझा कि वर्ब क्या होता है। वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वर्ब, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, where it is used, then what are the kinds of verbs and how they are used. So that is the main concept of the chapter verb, that where you have to put, where you have to use them. Okay, right? Then you have to use transitively and you have to use intransitively. हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं वो एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं, राइट? जैसे कि I feel a severe pain in my eyes, right? How he is feeling, that is the important. So he is, I feel, he feel, that is the transitive verb is used over here. Then we talk about the intransitive. How do you feel? The sentence is completed in itself only. Okay, the last word verb is no need for any object to be added over there, right? अगर आप दोनों sentences में compare करोगे, सीवियर पेन मतलब बहुत तेज दर्द होना, तुषार, ओके, विच इज नॉट बियरेबल, राइट? ओके, सो दोनों में सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ आया? आई फील अ सीवियर पेन इन माई आईज and how do I feel? Both the sentence is given here, the transitive and the intransitive. So the transitive verb
the sentence is being completed when the object is being put there, and when we talk about intransitive, we don't mean that. Okay. Then in second, the pilot flies the helicopter and the pigeons fly high in the sky, right? Okay, that is, the object is not added over here. It is the complete sentence itself. Then the girl are playing tennis, that is the intransitive, and the girl are playing in the field. Okay, the sentence is completed by itself. Okay, I attack, snack the board, and the board snacks speedily in the river. Okay, and the last one is the ass kick to the boy. This ass always kicks. Okay, means what they want to tell you is that the difference between the both the sentences which are being giving the same meaning to you, same identification to you, but they are differ when we talk about the transitive and the intransitive one. Okay, now the verbs are incomplete predication. Okay, that is read the following sentence. अब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस क्या होता है वो आपको देखना है. दैट इज बर्ड फ्लाई. ओके, एंड द गर्ल सीम नाइस. ओके, दीज आर इनकम्प्लीटेड. ओके, बर्ड फ्लाइज. Okay, they're not giving any, you can say the complete one sentence. Okay, the girl seems nice. Okay, then if you will join them, you will given with the sentence over there, like it, the in sentence, in this sentence the verb fly and seems are intransitive verbs. अगर हम इन दोनों सेंटेंस में देखें तो क्या है, fly that is the verb. Okay, and seems ये दोनों क्या है, they are intransitive. The fly and seems, ठीक है, these are your intransitive verbs, right? And the first sentence, bird flies, make the complete sense. Okay, when we talk about the bird fly, it is very simple and clear. जैसे मैंने अभी बताया कि क्या हो रहा है, bird fly कर दिए. Okay, they are flying. Okay, then you have in the second sentence the verb seems requires the word nice to make the sense complete. Okay, nice, अगर हमने यहाँ पे लिखा है the girl seems nice, ठीक है. अब हमने क्या करा है, द गर्ल सीम्स. अगर हम सीम्स पे एंड कर देते तो क्या ये कंप्लीट सेंस बनाता? नहीं, इट विल नॉट मेक द कंप्लीट सेंस फॉर अ सेंटेंस. Okay, so what we have done in the verb part, we have added nice. Okay, nice to make it the complete sense. Okay, and such a verb is called as the incomplete predication, right? So these type of words is known as your incomplete predication. Okay, the word nice, which is not an object in the sentence, but it requires a complete the sense. Okay, ये कोई object तो नहीं है, it is not an object. Okay, ये एक object में countable नहीं है. Okay, but then also what it is doing, it is completing the sentence. Okay, when we talk about the word nice, okay, it is not an object. Okay, but then also it is completing the sentence. Okay, clear to you all? Clear to everybody? Ask me if you have any doubt, please. Clear now? Pencil, pencil.
ओके ओके okay. So now we been cleared with this, and the second thing they have given is your the verb. This is called the intransitive one, right? And then it is talking about the word nice, which is not an object in the sentence but require the complete and it is called the complement of the verb, right? It is called the complement of the verb. So दो चीजें हमने क्या पढ़ी, एक तो हमने कब पढ़ लिया इनकम्प्लीट, ओके, और एक हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दो चीजें हमने क्लियर करी हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। ओके, दैट इज the first one is the incomplete predication। ठीक है, और सेकंड हमारा हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, राइट। तो ये दो चीजें और हैं जो हमने जी, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। ओके, ठीक है। तो अब आपके इसमें क्या दिया हुआ है, बर्ड की बताया हुआ है कि बर्ड क्या हो गया। ठीक है, बर्ड सब्जेक्ट हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के बता देती हूँ। आई विल राइट हियर एंड शो यू वंस, राइट। ओके, दैट bird, when it is talking about bird, it is your subject, right? When it is talking about fly, it is your verb. Very clear, this I have told you before also, right? Secondly, they are saying the girl. So when they are saying the girl, it is again your subject, right? And then we are talking about seems, it is your verb. Very true, right? And when they are saying about nice, so that will be your complementary of the verb. Clear? इतना आपको सबको समझ आया है एवरीवन? क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, right. So now the things which are being I have explained you, I will give you a quick revision of that so that it is being clear to you, clear to all of you, right? Now starting, we will be starting from, okay, we'll be starting from the topics which have been covered. That is the verb. हमने verb के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि verb क्या होता है। These whenever we talk about a verb, it is mainly a doing thing, doing word. Okay, that will be countable in the verb. Okay, and you can say any action which you can say that is by somebody or something does an action. Okay,
when and somebody or something is being done in an action, that is also countable in the verb. Okay, when we talk about the words like be and have, has, had, where, is, they all are also included in the verb category. Okay, then I have explained you with the examples. Okay, like she is a beautiful girl. Okay, so what here is beautiful is being stating the, you can say, giving a word telling what it is, how the girl is looking like. It is she is beautiful. Okay, then then we talk about the verb is the word that is used to express the action, okay, or any state, right? And the objects of verbs के बारे में फिर हमने पढ़ा था कि some verbs that have objects after them that is being used, that is the children eat. Okay, the verb it must be followed by some of the objects so that the sentence can be completed, right? So basically उसको हमें ऑब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया, राइट? फिर हमने काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, सॉरी काइंड्स ऑफ वर्ब्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ा। तो ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा कि ट्रांजिटिव जो है उसमें हमेशा हमें एक ऑब्जेक्ट की, वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट आवर सेंटेंस, टू मेक आवर सेंटेंस सम सेंस। एट दैट टाइम we use object with the verb in the sentence. Okay, that will be called as your transitive verb. Whenever we will use any sentence to completely make a sense, okay, in that case we need to add an object with the verb, with the verb. Okay, and that will be called as the transitive one, right? And then we'll talk about the intransitive. In intransitive, when we are talking about, in that case we don't need any object to complete the sentence, to make a sentence any sense, because it is already been completed. In that case it is being said to be your intransitive verb, right? Then we have talked about the different, you can say, we have talked about the different and types of verbs. Okay, with the example like the boy flies his kite, then the child is sleeping, bird flies, how you are feeling. Then we have made two same types of uh, sentences. We have the meaning of the sentence was same, but there are difference between the both. The difference was the transitive and the intransitive. That is, I feel a severe pain in my eyes, and that I have used in the intransitive. What I make that, how do you feel? Okay, so the difference between that given, then you have given with the sentence bird fly and the girl seems nice. So now they have differentiated ऑल दीज कैटेगरीज, उन्होंने उसको कैटेगरीज में डिवाइड करा और फिर उसको एक्सप्लेन करा है कि द वर्ड फ्लाई एंड सीम्स क्या है, ये एक intransitive verbs है, because the bird fly makes the complete sense. Okay, that is giving the complete sense to the sentence. And the second sentence in seems where they are talking about, वो seems में क्या है, the word nice जो है, that is making the complete sense. So that will be known as the verb of incomplete predication, right? And the word nice, which is an object of the sense but it required the complete sense, that is why it is called the complement of the verb. तो हमने वर्ड्स को डिवाइड करा, दैट इज अगर हम बर्ड की बात कर रहे हैं तो वो आपका एक ऑब्जेक्ट है, फ्लाई की हम बात कर रहे हैं दैट इज योर वर्ब, गर्ल, द गर्ल जो सेंटेंस में आ रहा है दैट इज योर सब्जेक्ट, एंड देन सीम्स की हम बात कर रहे हैं दैट इज योर वर्ब, एंड फाइनली द वर्ड नाइस, वो क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, बिकॉज द वर्ड नाइस इज मेकिंग द कंप्लीट सेंस, ओके, to the sentence. Okay, clear everyone now? Okay, so I'm ending the class over here today, and please students, please do
try to solve the exercise number A only. This is your homework. Please do try to solve exercise number A. अभी आप exercise number A solve करेंगे, then we will do with the second B and C. If possible, try to solve B and C also. And when we will do in the class, in our next live class, at that time you can just cross check whether you have done, how much it is correct, what is wrong. So at least you can understand that whatever you have been explained by me is clear to you all. At least you have understood what I was explaining. Clear to everyone? Okay. 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 Bye, all of you, and do take care of yourself. Okay.
और स्टूडेंट आर यू लिसन मी? बच्चा आप सुन पा रहे हैं मुझे? वेरी गुड मॉर्निंग दीपिका, राजवीर, रमेश, कार्तिक, नकुल, देवांश, उदय, कैसे हो बच्चों? ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ओके यस, और लेसन इज लेसन नंबर 13। ओके हम लेसन नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 13 अपना कंप्लीट हो चुका। ओके क्वेश्चन आंसर जो भी है वो मैंने कुछ सेंड कर दिए, जो बचे हुए हैं या नहीं किए वो मैं कर दूंगा। ओके यस, तो लेसन नंबर अपना जो 14 है कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट, ये हमने कुछ पढ़ लिया था। इसमें हमने जो एनवायरनमेंट है उसकी डेफिनेशन, जो थिंग्स अपने सराउंडिंग चारों ओर पाई जाती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके नेक्स्ट अपना जो इसमें टॉपिक था दैट वाज एयर पॉल्यूशन। ओके एयर पॉल्यूशन अपना कंप्लीट है। एयर पॉल्यूशन अपन ने कर लिया है, एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। बताइए यस या नो? रिपीट कर देता हूं। ओके मैं रिपीट कर लेते हैं आज एयर पॉल्यूशन। यस देखिए बच्चों, एयर क्या है? जो अपनी जो एयर है ओके उसके अंदर क्या है, डिफरेंट गैसेज हैं, उनका एक प्रोपोर्शन रहता है, एक रेशियो रहता है। ओके अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाता है कि ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो गैसेज है वो ज्यादा हो जाती है किसी भी रीजन से, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ओके अनवांटेड कंटेमिनेटेड है सब्सटेंस अपने एयर में मिक्स हो जाते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि हम फ्यूल्स यूज करते हैं, फ्यूल्स में क्या होता है, ईंधन होता है। ओके ये हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन कोयला जलाते हैं, कोल, पेट्रोल, ओके केरोसिन या वुड, इस तरह के जो ये चीजें हम यूज करते हैं तो इससे स्मोक निकलती है, और ये जो स्मोक रहती है पॉइजनस रहती है और अपने एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं तो अपने शरीर के अंदर भी जाती है। ओके तो ये अपने लिए काफी हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के अंदर ये फैल जाती है। तो ये जो कंडीशन है जब ये ज्यादा हो जाती है दैट इज known as air pollution. Okay, the burning of fuels in houses, factories, vehicles add smoke and poisonous substances in the air causing air pollution. तो जब ये जो है अपने एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है और एयर में मिक्स हो जाती है, उस कंडीशन को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। द बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स, इसके अलावा कुछ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स रहते हैं जैसे कि वुड है, पेट्रोल है, वुड मीन्स लकड़ी जो अपन चूल्हे वगैरह में जलाते हैं। ओके इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहां भी वुड काफी यूज होती है। पेट्रोल इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, तो जब हम वुड जलाते हैं ओके और पेट्रोल जलाते हैं तो ये अपने एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं और उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसे इंक्रीज कर देते हैं। Increasing level of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming and climate change. तो जब CO2 अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा होती जा रही है, क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो टेम्परेचर है इंक्रीज होता जा रहा है।
ओके, तो वो कंडीशन कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसा होता जा रहा है, क्लाइमेट भी उससे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, यहां तक आ गया बच्चों समझ में? ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रीज है वो क्या करते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब क्या है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2, और CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करता है, एक्सॉर्ब करते हैं। यानी कि एक्सहेल का मतलब होता है कि कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। इसके ऑपोजिट ट्रीज करते हैं। तो ट्रीज जब ज्यादा होंगे तो ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे, यानी कि रिलीज करेंगे। तो उससे अपना एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, ओके, बैलेंस बना रहता है। बट अगर हम ट्रीज को ज्यादा काट देते हैं तो ट्रीज कम होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें जो CO2 बढ़ रही है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और CO2 ज्यादा होती जा रही है और ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। ओके, trees take in carbon dioxide and give out oxygen. Trees therefore recharge and clean the atmosphere. By cutting down forests to build houses, अब देखो पेड़ों को काटा जा रहा है। ओके, बिल्ड हाउसेस का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, ओके, तो जहाँ पहले खेती होती थी तो वहां पर क्या है, मकान, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। तो इस तरह से काफी प्रॉब्लम्स होती जा रही है, पेड़ कंटिन्यू लार्ज अमाउंट में काटे जा रहे हैं। बिल्ड हाउसेज, फैक्ट्रीज वी हैव डैमेज द एनवायरनमेंट। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने जो एनवायरनमेंट है उसे हम क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो एयर पोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कि इस तरह से के जो फ्यूल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोल है, तो इनको हम रिड्यूस करें, यानी कि इनका हम यूज कम करके, ओके, हम एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा यूजिंग फिल्टर्स इन फैक्ट्री चिमनीज टू फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंस एंड बाय एफोरेस्टेशन। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ चिमनीज रहती हैं, तो वहाँ फिल्टर लगाया जा सकता है, जिससे कि वहां से जो स्मोक वगैरह निकलते हैं, ओके, वो अपने एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं हो और एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से बच जाए। इसके अलावा हमें एफोरेस्टेशन भी करना चाहिए, लार्ज अमाउंट में हमें पेड़ लगाने चाहिए। सभी, हर किसी को पेड़ लगाने चाहिए, अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि अपने जो प्लांट्स हैं ये बड़े हो जाएं, ट्रीज बने, और अपने एनवायरनमेंट को क्या रखें, ये क्लीन रखें। ओके, तो आप भी जब भी आपका बर्थडे आए तो अपने आसपास या घर में कहीं भी आप एक पेड़ जरूर लगाओ। ओके, पौधा लगाओ। अगर स्पेस नहीं है तो आप गमले में भी लगा सकते हो, है ना, छोटे जो प्लांट्स है वो लगा सकते हैं। जब भी आपका बर्थडे आए तो आप ये तो जरूर कीजिए, फैमिली में किसी का भी बर्थडे आए तो आप एक पेड़ लगा दिया करो। आसपास बहुत स्पेस रहता है तो कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो अपने बर्थडे पर प्लांट लगाते हैं? एनी स्टूडेंट? देवांश, उदय, प्रतीक, नव्या, मल्होत्रा, नकुल, दीपिका, कुशाल, या आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि बर्थडे पर हमें एक जो पेड़ है ना, वो जरूर लगाना है, नर्सरी मिलते हैं, आप लगा सकते हैं। वेरी गुड, और फिर उसकी केयर भी करनी चाहिए। ओके, और फिर उसकी क्या करनी चाहिए, केयर भी करनी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें केयर करने में, 5-7 मिनट में बस पानी वगैरह डाल दिया बस, है ना, उसको ट्री गार्ड उसके लगाने चाहिए। कुशाल, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, आप जब भी आपका बर्थडे आए तो पेरेंट्स आप केक के लिए बोलते हैं, टॉफीज के लिए बोलते हैं, न्यू ड्रेस के लिए बोलते हैं, तो आप ये भी कहा करो कि हमें एक प्लांट भी लगाना है। ओके, तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में ही प्लांट जरूर लगाया करो। स्पेस नहीं हो आप घर में भी लगा सकते हैं, ऐसा प्लांट जो कि बहुत बड़े नहीं होते वो आप घर में भी लगा सकते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है अपना वाटर पोल्यूशन।
3 टाइप्स के आपको बताए थे जो कि पॉल्यूशन है अपने अकॉर्डिंग टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन अपना कंप्लीट है, नेक्स्ट अपना वाटर पॉल्यूशन। देवांश लगाया भी करो, है ना, खुद को भी लगाना चाहिए। इससे आपको अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेवलप करने में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपने एक पेड़ लगाया, पौधा लगाया है, तो आप उसको कैसे केयर करेंगे, कैसे उसको मेंटेन करेंगे, कैसे उसको सेफ रखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी, तो आप खुद उसकी केयर करना सीखोगे। ऐसा थोड़ी ना कि हमने दूसरों को दे दिया कि तू लगा इसको, ऐसा नहीं, आपको खुद को भी मेहनत करनी होगी। और लगा रखा है, ठीक है, और लगाना चाहिए। आपकी फैमिली में किसी का भी बर्थडे आए तो जरूर लगाएं। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखेंगे। यस, वाटर पोल्यूशन, वेस्टेज फ्रॉम और हाउस, होम एंड फैक्ट्रीज आर डम्प्ड इनटू रिवर। अब देखिए बहुत सारी ऐसी जगह रहती है, अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट जहाँ पर रिवर्स ज्यादा रहती हैं, ओके, तो वहाँ नॉर्थ पार्ट है या जो भी है पंजाब है, तो जहाँ यूपी है जहाँ पर रिवर्स ज्यादा है, तो लोग अपने जो घरों का जो वेस्ट रहता है वो भी उसमें डंप कर देते हैं। फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकलते हैं वो भी रिवर में फ्लो कर देते हैं कि वो भी रिवर में चली जाती है। तो इस तरह से अपने जो वाटर बॉडीज है रिवर्स में छोड़ देते हैं या लेक्स में या पॉन्ड्स में या सी में, है ना, तो उसमें वो वेस्टेज फ्लो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये जो वाटर बॉडीज है ये क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। और उसके पॉल्यूट होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जो वाटर, जो मेराइन एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम होती है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है, ओके। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। तो यही कॉजेज हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है कि अपना जो होम में जो वेस्टेज है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज है वो रिवर्स में, लेक्स में, सीज में, इनमें डंप कर देते हैं, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। दिस अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ओके, जो कि पानी में रहते हैं, उन पे ये काफी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूट वाटर कॉजेज ए नंबर ऑफ डिजीज। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है, तो उससे भी काफी बीमारियां इंक्रीज हो जाती है। Water pollution can be reduced by treating sewage and wastage from factories before disposing them in water bodies। अब देखिए वाटर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, वाटर पोल्यूशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं कि उनका एक प्रॉपर ट्रीटिंग सीवेज सिस्टम बनाए जाए, जिससे कि उनको वाटर बॉडीज में जाने से पहले उनको क्या कर दिया जाए, बहुत कुछ उनको क्या कर दिया जाए, प्योर कर दिया जाए। तो उससे जो है हम वाटर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। वेरी गुड, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए लैंड पोल्यूशन। अब देखिए एयर पोल्यूशन तो हो गया कि जो वायु प्रदूषण है, लैंड वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण हो गया, लैंड पोल्यूशन जो अपने जो मृदा प्रदूषण या इस अपन भूमि प्रदूषण भी ऐसे कह सकते हैं, ओके। थल प्रदूषण भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें वेस्टेज आर आल्सो ऑफन थ्रोन और बरीड इन लैंड। अब वेस्टेज होते हैं, आपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वेस्टेज होते हैं जिसको क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में जो थोड़ा खड्डा खोद के उसके अंदर दबा दिया जाता है,
ओके, तो उससे क्या होता है, अपनी जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो जाती है, लैंड पोल्यूशन उससे इंक्रीज हो जाता है। जैसे प्लास्टिक की थैलियां हैं, ओके, और भी बहुत सारे लोग जो डेड, जो घरों में वेस्टेज निकलते हैं, ओके, प्लास्टिक वगैरह है, कांच है, उनको जमीन में डाल देते हैं। ओके, तो उससे अपनी जो मिट्टी रहती है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, बिकॉज जो प्लास्टिक्स है, पॉलीथीन है, पॉलीबैग है, ये क्या नहीं होते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, काफी ईयर्स तक ये उसमें ऐसे ही रहते हैं। तो इससे अपनी लैंड पोल्यूशन ज्यादा होता है। Land pollution is also caused by excessive use of fertilizers and pesticides. Pesticides से and fertilizers है, ये ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं तो उसमें केमिकल स्प्रे करते हैं। केमिकल क्या कर देते हैं, जो अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए, ओके, तो वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। या फिर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो मैन मेड जो रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, वो फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो उनको भी उसमें डाल देते हैं खेतों में, कि उससे फसल ज्यादा हो, और जो जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो अपनी फसल को डिस्ट्रॉय नहीं करें। बट उसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि वो जो फर्टिलाइजर्स हैं, ओके, या इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, जो स्प्रे करते हैं, बाद में वॉश अवे होके वॉश हो जाते हैं, और वो अपनी जो लैंड है उसके ऊपर ये आ जाते हैं। ओके, तो उससे क्या लॉस होता है कि उसमें जो मिट्टी है वो पॉल्यूट हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इसके अलावा अर्थवर्म वगैरह पाए जाते हैं, जो कि अपनी जो लैंड है, ओके, जो खेती की जो जगह है उसके लिए काफी यूजफुल होता है, तो वो भी उससे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उससे मर जाते हैं। तो जब ये एक्सेस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो तो खत्म हो ही गए, इसके अलावा जब बरसात वगैरह आती है तो वो जो केमिकल्स है वॉश अवे होके वो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स या सीज के अंदर भी मिक्स हो जाते हैं, तो उससे जो मैराइन लाइफ है वो भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है, तो इस तरह से काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है। Land pollution can be reduced by managing garbage better and by controlling the use of fertilizers and pesticides. तो हम लैंड पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कि जो गार्बेज की जो व्यवस्था है, कचरा वगैरह जो लेकर जाते हैं यहाँ से, अपनी गाड़ियों में भी लेकर जाते हैं, घर के आसपास से आपने देखा होगा, है ना, तो उनको डिस्पोज करने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए व्हीकल्स लगाए जाते हैं नगर निगम द्वारा, कि अपन जो है वो आसपास जो डोमेस्टिक जो गार्बेज होता है उसको हम यूं ही बाहर फेंक देते थे। ओके, तो उससे लैंड पोल्यूशन होता था, ओके, एयर पोल्यूशन भी होता था, वाटर पोल्यूशन भी होता था, इसीलिए गाड़ी वाले आते हैं और यहाँ से लेकर जाते हैं उसको, प्रॉपर उसका जो है प्रॉपरली उसको डिस्पोज करते हैं। तो हमें भी अपने आसपास जो है इस तरह के जो गार्बेज है उनको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बेटन बाय कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, और प्रॉपर वे के अंदर ही जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनको यूज करना चाहिए, एक्सेस इनका यूज नहीं करना चाहिए। ओके, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक ये अपने तीनों 3 टाइप्स के जो पॉल्यूशन थे वो अपन ने कर लिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। इसमें आपको कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है आपको? उदय, राजवीर, प्रतीक, एनी डाउट? यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल। ओके, एनी मटेरियल दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। अब देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट क्या चीज होती है, एनीथिंग जो कि कोई भी चीज जो कि हम लॉन्ग टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं वो अपने लिए क्या है, वेस्ट है। वेस्ट का मतलब ये नहीं कि कचरा, ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो हम काफी टाइम से यूज नहीं कर रहे, तो अपने लिए क्या हो जाती है,
वेस्ट हो जाती है। ओके, या हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो वो भी वेस्ट है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पीस, और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है। जैसे अपने एग्जांपल है कि जो हमने फ्रूट वगैरह छीले हैं तो उनके जो पीस होते हैं, उनका जो ऊपर का जो कवर रहता है, छिलका रहता है, उसे हम पीस बोलते हैं। सब्जी वगैरह ग्रीन जो वेजिटेबल्स है वो हमने साफ की तो उसमें बहुत सारे वेस्टेज निकल जाते हैं कि जो हम यूज नहीं करते। ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है। ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, मैगजीन्स हैं जो हम अब न पढ़ते हैं न उनका यूज करते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स, ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन ग्लास, मेटल्स, कैन, मेनी अदर थिंग्स। तो ये सभी क्या है, ये हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो नहीं करेंगे तो मीन्स वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन सिटी इज ए बिग एनवायरमेंट प्रॉब्लम। तो जो बिग सिटीज है वहां पर इस तरह की जो वेस्टेज है उससे जो एनवायरनमेंट है वो काफी पोल्यूट होता है, और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम बड़े शहरों के लिए होती है। अपने आसपास भी अपन देखते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कचरा है वो ऊपर में नहीं डालते, वो ऊपर में नहीं डालते हैं, वो जो गाड़ी आती है नगर निगम की उसमें नहीं डालते, आसपास कहीं भी फेंक जाते हैं, तो वहाँ कचरे के क्या लग जाते हैं, ढेर लग जाते हैं। तो एनवायरनमेंट उससे क्या होता है, पॉल्यूट होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्हेन वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली, जर्म्स एंड डिजीज स्प्रेड। तो जब प्रॉपर्ली इनको डिस्पोज नहीं किया जाता है तो जर्म्स वगैरह काफी इसमें ज्यादा, जर्म्स वगैरह काफी स्प्रेड हो जाते हैं, काफी फैलते हैं इससे, और उससे बीमारियां बढ़ जाती हैं। द वेस्ट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड इन अ रिवर और लेक एज इट पॉल्यूट्स द वाटर। तो ये जो भी वेस्टेज है इनको हमें जो रिवर है, लेक है, वाटर बॉडी जो भी रहती है उसके अंदर इससे डिस्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। बर्निंग ऑफ वेस्ट पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा वेस्ट पॉल्यूट को जलाते हैं, प्लास्टिक वगैरह आपने देखा होगा आसपास कचरे का ढेर है तो लोग उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, तो प्लास्टिक वगैरह जलता है तो ये भी अपने लिए काफी हार्मफुल है, अपने एनवायरनमेंट को ये काफी पॉल्यूट करता है, क्योंकि उससे जो हार्मफुल गैसेस रहती हैं वो अपने एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है और ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा को कम कर देती है। इफ इट इज buried in land, अगर इसको हम जमीन में डाल देते हैं, इट pollutes द लैंड एंड ग्राउंड वाटर। तो वो अपनी जो लैंड है उसको पोल्यूट करते हैं और ग्राउंड वाटर को भी क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। Therefore, it is important to dispose the waste properly। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी ये गार्बेज है, पॉल्यूटेंट्स है, जो भी इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम प्रॉपरली डिस्पोज करें, जिससे कि अपने एयर पोल्यूशन नहीं हो, वाटर पोल्यूशन नहीं हो, लैंड पोल्यूशन नहीं हो। ओके, अब देखिए जो वेस्टेज होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक ही टाइप के नहीं होते, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए वी जनरेट टू काइंड्स ऑफ वेस्ट, तो इसमें टू काइंड्स क्या हैं, और यही होते हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ऐसे वेस्टेज जो कि प्लांट से या एनिमल से निकलते हैं, ओके, तो ये क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज सॉइल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इनको क्या कर देते हैं, मेन्योर में या सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह के वेस्टेज जो कि कुछ टाइम बाद जो अपनी सॉइल है उसमें मिक्स हो जाते हैं, ओके, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जो कि प्लांट से या ह्यूमन बींग से निकले हुए रहते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं जैसे कि प्लास्टिक है, सबसे उसमें मेन क्या आएगा, प्लास्टिक है, ओके, ग्लासेस है, यानी कि कांच है, तो केमिकल, तो इस तरह के ये जो है ना, तो ये वो चीजें हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, काफी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ईयर्स तक अपने एनवायरनमेंट पे वैसी ही पड़ी रहती है, और अपने एनवायरनमेंट को ये हार्मफुली इफेक्ट करती है। तो ये इस तरह के जो वेस्टेज होते हैं वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, बिकॉज ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाते, ओके, नष्ट नहीं हो पाते, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अच्छा, अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
This is waste obtained from plants and animals. Okay, such as vegetables and fruits peels, जैसे सब्जियां वगैरह हैं उनको अपन साफ करते हैं. ओके, बहुत सारे उसमें एक्स्ट्रा निकल जाते हैं. या फिर फ्रूट पील्स हैं, यानी कि जो फ्रूट्स अपन उनको छीलते हैं तो वेस्ट निकलते हैं. मीट एंड बोन्स, ओके, फ्लावर्स, लीव्स एंड पेपर्स, ये सभी चीजें बायोडिग्रेडेबल रहती हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रॉट्स एंड फाइनली मिक्सेस विद द सॉइल. तो ये धीरे धीरे रॉट्स हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है. ओके, और कन्वर्ट होते हैं, लास्ट में ये जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है. तो इससे अपनी सॉइल को नुकसान नहीं होता. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस इज वेस्ट दैट डज नॉट रॉट, ये रॉट भी नहीं होती. सच एज प्लांट्स, प्लास्टिक बैग्स हैं, पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, मेटल कैन्स, ग्लास bottles and broken glass pieces. That two kinds of waste are disposed in different ways. तो ये जो चीजें रहती हैं ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाती, इसलिए इन दोनों को डिस्पोज करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं. ओके, reducing waste and disposing it properly are necessary to conserve the environment. Okay, अब देखिए, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड डिस्पोजिंग इट प्रॉपरली, तो रिड्यूस करना चाहिए वेस्ट को, है ना, एंड डिस्पोजिंग उसको प्रॉपरली करना चाहिए. और ये काफी ज्यादा नेसेसरी है, काफी ज्यादा ये आवश्यक है कि अपने एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को हम संरक्षित रख सकें, एनवायरनमेंट को अपन बचा सकें. उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो भी वेस्टेज होते हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज करें, और उनका यूज भी, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को ज्यादा पोल्यूट करते हैं तो उनका यूज भी हम क्या करें, कम करें, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें. ओके, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अपना रिड्यूसिंग वेस्टेज, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज अपना टाइम हो रहा है. ओके, और ये टॉपिक भी, ये पैराग्राफ और टॉपिक काफी लॉन्ग है, ये अभी कवर नहीं हो पाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, इससे पहले वाला जो लेसन था, ओके, वो मैंने अभी आपके पास में सेंड नहीं किया है. उससे पहले वाले की जो अपने एक्सरसाइज थी वो मैंने आप सेंड की है, और मैं आपको ये एक्सरसाइजेज, चैप्टर 13 के एक्सरसाइजेज एंड जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल सेंड करूँगा. ओके, आज जो हमने पढ़ा इसमें कुछ आपको पूछना है, एनी क्वेश्चन तो इसमें अभी पूछिए, कोई क्लियर नहीं हो कोई पॉइंट. ओके, नो प्रॉब्लम.